हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज हम सीखेंगे स्टैटिस्टिक में सेकेंड चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अभी डेटा को कैसे प्रेजेंटेट करना है और डेटा कौन से टाइप की होती है पहले हम वो सीखेंगे। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया है, देखो, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स का होता है वो पहले हम सीखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में जो हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है वो दो टाइप्स की होती है, एक तो क्वालिटेटिव होती है और दूसरी क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव डेटा आर बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव वेरिएबल, वेयर एज क्वालिटेटिव डेटा आर बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव वेरिएबल। आप देख सकते हो कि क्वांटिटेटिव डेटा है वो किसके बेस पर है, क्वांटिटेटिव के बेस पर, और जो क्वालिटेटिव है वो क्वालिटेटिव बेस के पर होती है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज of two types, discrete variable and a continuous variable. If a variable can assume, define or a countable value within the specified range, then it is called a discrete variable. For example, number of children per family, number of accident on road. If a variable x assume the specific value 1, 2, 1.3, 1.5, etc., then it is called a discrete variable. If a variable can assume any value within a specified range, then it is called a continuous variable. मतलब जो हमें specified value दी गई है वो है discrete, और जो हमें within a assume any value within a specified range तो उसको बोला जाता है continuous. For example, height of person, maximum temperature on a day, etc. are the example of continuous variable. In a practice, if we have to count something for obtaining the value of variable, then it is called discrete variable. For example, for obtain the value of number of children per family, we have to count the children. For obtaining the value of number of accident on road, we have to count of accident, so they are example of discrete variable. If we have to measure the observation of obtaining the value of variable, or if the value of variable is expressed along with the measuring unit, then it is called continuous variable. Height of the person is measured in centimeter, on inches or feet. Maximum temperature is a measure in a Celsius, so they are the example of continuous variable. The data based on discrete variable are called discrete data, and data based on continuous variable is called continuous data. देखो ये आपको करना है कि जो डेटा है वो discrete variable are called discrete data and continuous दिया है is called a continuous data. The data obtained at the end of simple inquiry or a population inquiry are called raw data or a ungrouped data. राइट जो है उसको हम रो डेटा भी बोल सकते हैं और अनग्रुप भी बोल सकते हैं। जैसे सिंगल इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि 1, 2, 3, 4, 5 वो दिया जाता है, और उसको जो स्पेसिफाई बिकम करना है वो एकदम उसको नेसेसरी अरेंज करना होता है। जो सिस्टमेटिक एंड शॉर्ट फॉर्म में होता है उसको हम अनग्रुप डेटा बोलते हैं। अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ungroup or raw data into proper form is called a classification. Underline this line. A process of arranging ungroup or a raw data into proper form is called a classification on data, and the data thus obtained are called a classified data. For example, it is known that the daily demand on a certain commodity during a week are 12, 16, 8, 12, 8, 8 and 10 respectively. From this raw data, it is clear that there are 3 days during which demand on a commodity is 8 units, 1 day during which the demand is 10 unit, 2 days during which the demand is 12 unit, right, and 1 day during which the demand is 16 units. This information can be presentation in the फॉलोइंग क्लासिफाइड टेबल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिया गया है द टेबल शोइंग डेली डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यूरिंग अ वीक। ये हेडिंग है तो कोई भी करने से पहले उसको हेडिंग में कन्वर्ट करना है। डिमांड ऑफ कमोडिटी
तो देखो ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट इज एक्स एंड देन सेकंड इज वाई, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, राइट। तो इस मेथड को कब हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखो इसके हमें पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट, टू रिप्रेजेंट लार्ज डेटा इनटू सिंपल शॉर्ट एंड एट्रैक्टिव मैनर्स, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंपल शॉर्ट और एट्रैक्टिव करने के लिए। सेकेंड, इजी कंपेरिजन बिटवीन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, तो यहाँ पर हम इजीली उसको कैरेक्टरिस्टिक्स कंपैरिजन कर सकते हैं टू सेव टाइम, मनी एंड लेबर। एंड लास्ट है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इजीली रिगार्डिंग वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिया अंडर स्टडी। ओके, तो उसी तरीके से आज मैं समझाना चाहती हूँ कि अनग्रुप डेटा किस तरह से होता है। तो देखो यहाँ पर मुझे ये डिस्क्रीट और उसमें दिया गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन में जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसमें मैं आज आपको पढ़ाऊँगी कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो दी गई है नंबर ऑफ एक्सीडेंट, तो इसके ये डिस्क्रीट है मतलब अनग्रुप दिया गया है। तो पहले हमें इस तरह से हेडिंग देना है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट पर डे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। तो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 0 और सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एक्सीडेंट 0 1 2 3 4 5 है ना। फिर हमें दूसरी कॉलम में करना है टेली मार्क और तीसरी कॉलम में करना है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये इसका टोटल है। और आप देख सकते हो ये 10th में भी आप सीख चुके हो और देख सकते हो कि जब ये पांचवी लाइन होती है तो वो बीच में करनी है, वो पास में करनी नहीं। फिर इसको काउंट करके यहाँ पर लिखना है और इसका जो टोटल है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया होता है कि ये जो नंबर है वो 31 ही होना चाहिए। तो अब हम 0 करके पहले इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे कि कितने 0 दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो हमें 9 दिया है तो हमें 9 लाइन करके यहाँ पर 9 लिखेंगे। उसी तरीके से 1 हमें कितना दिया है तो 1 हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 हमें 7 दिया है और यहाँ पर 7 लिखेंगे। उसी तरीके से 2 कैलकुलेट करेंगे तो 2 भी 7 है। उसी तरीके से 3 कैलकुलेट करेंगे तो 3 भी 4 दिया गया है। उसी तरीके 4 कैलकुलेट करेंगे तो 2 दिया गया है और उसी तरीके से 5 कैलकुलेट करेंगे तो 2 दिया है और इसका टोटल 31 ही आना चाहिए। आई थिंक आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।